Hello everyone. Let's begin this session of certain set of questions of MCQs. As you all know that we are doing unit 5 and these questions are related to sampling. We have done what exactly sampling is, various types that are covered in sampling, and today we will move to another parametric tests related to this sampling. Be ready with me, understand each and every question, try to answer first by yourself and then see what exactly the answer is, whether it matches with your choice or not. So, beginning with the very first question, read the following statements and choose the correct code. Statement 1 is given to you that non-parametric tests are based on some assumptions about the parent population from which the sample has been drawn. जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं क्या उसमें कुछ assumptions होती हैं, some assumptions of parent population? This is incorrect. Next, the standard deviation of the sampling distribution of mean is called standard error of mean. That's completely true. So we will go with option D, where it is statement 1 is false and statement 2 is true. Then next question is, which one of the following is not the correct statement regarding sampling distribution of mean, which is not the correct. क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपने देखना है, क्या एग्जैक्टली आपसे पूछा गया है. नॉट करेक्ट. अमंग दीज 3 ऑप्शंस जो है वो करेक्ट होंगी. First, sampling distribution of mean is normally distributed for large size samples. That's correct. Second, sampling distribution of mean is normally distributed for small size sample drawn from not normally distributed population. That's incorrect. तो इनकरेक्ट हमें मिल ही गई है. हम सी और डी को रीड नहीं करेंगे, बट योर फॉर योर ऑन बेनिफिट आप सी डी को रीड कीजिए, ये ट्रू ही होंगी. सो वी विल गो विद ऑप्शन बी हेयर, दैट विल नोट करेक्ट. Okay, next, which one of the following tenets is not correct in the context of central limit theorem? सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमने की है, तो इसी से रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं. लेट्स सी which among this is not correct. So we have here, if a population from which a sample is drawn is normally distributed, the sampling distribution of mean will normal for all the sample sizes. It's correct. The mean of sampling distribution of mean is population mean. Correct. If the population is not normal from which the sample is drawn, still the SDM is not normal. It is incorrect. So option C will be your answer, that this statement is incorrectly given. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो ये कहता है दैट मॉडरेटली जो लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स जो कि हम रैंडम चूज करते हैं फ्रॉम अ सेट ऑफ पॉपुलेशन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लार्ज ग्रुप इज रेफर्ड एज. इस पर्टिकुलर लॉ को हम किस नाम से बुलाते हैं एक्चुअली? सो दिस लॉ इज, विदाउट रीडिंग एनीथिंग, द लॉ ऑफ स्टेटिस्टिकल रेगुलरिटी. मीन्स उसमें इस लॉ को हमने इस नेम से रेफर किया है. ओके, वी विल गो विद ऑप्शन बी. Next question, if the sum of squares of deviation within samples is 140, okay, sum of squares of deviation आपको दिया गया 140, with 12 degrees of freedom it is given, and sum of squares of deviations between sample is 190 with 2 degrees of freedom. तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो होगा वो कैसा होगा? तो विद द गिवन फिगर्स जब आप कैलकुलेट करोगे, योर आंसर वुड बी 8.14. अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा. फॉर्मूलाज ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं इन डिटेल. अगर आपने यूनिट 5 को डिटेल में समझना है टॉपिक वाइज, यूनिट 5 की प्लेलिस्ट का लिंक मैं टॉप पर दे रही हूँ, इसको आप कवर कीजिए. राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज अगेन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. सो लिस्ट 1 में हमें दिया गया है दैट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. तो अगर हम यहाँ से देखिए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज ऑल्सो टाइप 1 एरर. सो ए का हमारा थर्ड ऑप्शन रहेगा. बी और सी में दिया गया है. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एरर. बहुत इजी है. सो बी का फोर्थ रहेगा. सो वी विल बी क्लियर विद आवर चॉइसेस. ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा. इसमें सारे आपके मैच हैं. करेक्ट. सी और डी को आप अकॉर्डिंगली चेक कीजिएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथडोलॉजीज स्टेटमेंट्स डू यू अग्री विद?
ओके ये आपको कुछ दी गई हैं स्टेटमेंट्स, अकॉर्डिंग टू सैम्पलिंग मेथड आप किस स्टेटमेंट को यहाँ पर करेक्ट करोगे. ऑलवेज चूज द मेथड मोस्ट सूटेड टू द प्रॉब्लम इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल अदर फैक्टर्स, दैट्स नेवर ट्रू. आपको अदर फैक्टर्स भी कंसीडर करने पड़ते हैं, तो ए के साथ हम नहीं जाएंगे. द रेयरर द पॉपुलेशन द लार्जर द सैम्पल साइज शुड बी, इज इट दैट? नो, नॉट एट ऑल, ऐसा भी नहीं है. सैम्पल साइज इज मोर इम्पॉर्टेंट देन सैम्पलिंग मेथडोलॉजी. नो, सैम्पल मेथडोलॉजी इज more important. We should use probability method for the important business decisions. Yes, probability method को हमें choose करना चाहिए, so we should go with option D. A high level of known response to a survey. अगर आप एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हो और उसमें रिस्पॉन्सेज आ ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे सर्वे को हम क्या करेंगे? इज फिक्सेबल बाय एलिमिनेटिंग एनी सैम्पल एरर से क्या वो फिक्स हो सकता है? नो. इज द सैम्पलिंग एरर रिलेटेड टू डिफाइनिंग द सैम्पल यूनिट? ऐसा भी नहीं है. विल नॉट बायस द रिजल्ट, बिल्कुल रिजल्ट तो बायस आएंगे ही. जब रिस्पॉन्स आपको करेक्ट नहीं आया तो ये स्टेटमेंट भी नहीं होगी. विल प्रोड्यूस बायस्ड रिजल्ट्स ड्यू टू नॉन सैम्पलिंग एरर. यस, वी विल गो विद ऑप्शन डी. राइट. Then next question we have is, when it comes to the precision of research estimates. Precision of research estimates, I hope आप इस टॉपिक से well aware हो. Then अगर हम precision of research estimates को लेकर चलें तो ये जो हमें statements दी गई हैं इनमें से क्या correct होगी? So which of the following is correct? Statistical formula can measure non-sampling error. A reliable measure is always valid. Non-sampling error can affect validity of results. Yes. Precision of research estimates non-sampling error से ही related होता है और इसमें वो results को vary कर सकता है. We will go with option C. Next is, by which of the following methods the sampling error in comparison to biased approach can be reduced? सैम्पलिंग एरर हम कैसे कम कर सकते हैं? ओके, रिस्पॉन्स रेट को इंक्रीज करके, इंटरपोपुलेशन को, इंक्रीज द सैम्पल साइज. यस, बायस्ड अगर अप्रोच आ रही है तो सैम्पल साइज को आप इंक्रीज कर दीजिए, उससे एरर कम हो जाएगा. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पल सिलेक्शन टेक्निक? प्रोबेबिलिटी, चांसेस के बेस्ड पर एक ये सैम्पल टेक्निक होती है. जजमेंट में भी आप अपनी चॉइस यूज करते हो. मल्टी स्टेज स्ट्रैटिफाइड जो सैम्पलिंग होती है, मल्टी स्टेज स्ट्रैटिफाइड. सब्जेक्टिव में भी आप यूज करते हो, एक्सीडेंटल में भी ऐसा होता है. सो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप स्ट्राटाज में डिवाइड करते हो, उसके बाद चॉइस करते हो, सो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड सीम टू बी मोस्ट अप्रोप्रिएट इन क्वालिटेटिव सैम्पलिंग? सपोज कीजिए आपके पास जो डेटा है वो क्वालिटेटिव है, तो यहाँ पर आपको बेस्ट कौन सा मेथड यूज करना रहेगा? कोटा. कोटा बेस्ड पर आप सिलेक्शन कीजिए. ओके. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रॉब्लम विद यूजिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स? जब आप यूज करते हो, प्रोबेबिलिटी नहीं, नॉन प्रोबेबिलिटी, तो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है? द एक्सपेंस? नो. द रिजल्ट्स आर नेवर रिप्रेजेंटेटिव? ऐसा भी नहीं है. ह्यूमन जजमेंट एरर? यस, क्योंकि यहाँ पर आप बेसिकली अपनी जजमेंट या आप स्ट्रैटेजी ऐसे लेकर चलते हो, सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स होते हैं. दैट्स वाई ह्यूमन जजमेंट एरर का बहुत बड़ा इफेक्ट है, ये हो सकता है, ये कारण है इसका. देन नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अप टू डेट, कंप्लीट एंड अफोर्डेबल एज पर आर सैम्पलिंग रिक्वायरमेंट्स? क्या इसमें करेक्ट होना चाहिए? दैट इज सैम्पलिंग फ्रेम. सैम्पलिंग फ्रेम जो भी आपने बनाया है, इट शुड बी अप टू डेट, कंप्लीट एंड अफोर्डेबल, तभी आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो. Then next question, which one of these sampling methods is a probability method? Means वो probability method है जो कि objective, accurate and unbiased है. So that is your probability based. देखिए कोटा भी नहीं होता, judgment भी नहीं होता, convenience भी नहीं होता. So your answer is very simple, that is simple random. नेक्स्ट, सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस. यस, ऐसा होता है, सैम्पलिंग में आप स्टेज वाइज स्टेज चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस शुड कम बिफोर द अदर्स? तो हमें ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है. लेट्स रीड ऑल दीज. प्रोसीड विद द फील्ड वर्क, फाइंड सुटेबल सोर्स फॉर पॉपुलेशन मेम्बर्स, कहाँ से आप डेटा इकट्ठा करने वाले हो, डिफाइन द पीपल ऑफ इंटरेस्ट एंड एग्जामिन द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी. तो सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपका सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? एग्जामिन द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी. जो भी आप रिसर्च करने वाले हो उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, क्यों आप कर रहे हो, वो कंडक्ट क्यों कर रहे हो? सो ऑप्शन डी.
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन बेनिफिट्स ऑफ स्नोबॉल सैम्पलिंग जो होती है, लाइक आपने डेटा एक से इकट्ठा किया, फिर वो आगे पर्सन को उसने सजेस्ट किया, फिर उससे लिया, फिर ऐसे सजेशंस के थ्रू, तो यहाँ पर यू हैव एक्सेस डेविएंट और हिडन पॉपुलेशन के कॉन्टेक्ट में आते हो, दैट्स ट्रू. थ्योराइज इंडक्टिवली इन क्वालिटेटिव स्टडी, येस. ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग एन एक्सेसिबल सैम्पलिंग फ्रेम, येस. ऑल ऑफ द अबव. सो ये सब जो बेनिफिट्स है वो आपके कवर हो जाते हैं. सो येस, ऑल ऑफ द अबव वुड बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. I hope you are understanding what we are doing here. Next, which of the following is not a type of non-probability sampling as it seems to be more objective in nature? इनमें से जो है वो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है, अदरवाइज वो सारे आपके सैम्पलिंग हैं. सो स्नोबॉल सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी है, कोटा में भी थोड़ा बहुत होता है, कन्वीनियंस, and next is it's not a type of known probability. okay, known probability ये भी है, snowball भी known probability में आता है. so stratified sampling is not a known probability, it's a probability one. so we will go with option B here. students, don't get confused, question को अच्छे से समझिए, जैसे मैंने बार बार रीड किया आप भी ऐसे ही रीड करो और इसको अच्छे से समझो. what effect does increase in the population have upon the sampling error? अगर आप पॉपुलेशन के साइज को इंक्रीज कर देते हो तो इससे आपकी सैम्पलिंग एरर पर क्या इफेक्ट पड़ता है? ऑब्वियसली जितने पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी उतना ही आपके पास सैंपल कलेक्ट करने के चांस बढ़ेंगे और उससे उतना ही सैम्पलिंग एरर कम होगा. सो इट विल रिड्यूस द सैम्पलिंग एरर. फर्स्ट ऑप्शन ए. देन द स्टैंडर्ड एरर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ व्हाट? स्टैंडर्ड एरर किस चीज़ का मेजर होता है? टू द एक्सटेंट टू विच सैम्पल जो है आपका वो पॉपुलेशन से कितना अलग है, सैम्पल मीन कितना वेरी कर रहा है पॉपुलेशन मीन से. सो ऑप्शन बी आपका इसका आंसर रहेगा. देन नेक्स्ट, मूविंग टू द लास्ट टू क्वेश्चंस, रीड विद मी, अंडरस्टैंड देम केयरफुली. इट इज़ हेल्पफुल टू यूज मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग, जो हमने की थी टाइप ऑफ सैम्पलिंग में. तो जो मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग होती है उसको यूज़ करना क्यों हेल्पफुल है? पॉपुलेशन इज़ वाइडली डिस्पर्स्ड, येस, कहीं कहीं पर होता है तो जोग्राफिकली आप उसको कवर कर सकते हो. यू हैव लिमिटेड टाइम, इसलिए भी ये क्लस्टर सैम्पलिंग हेल्पफुल है. यू वांट टू यूज़ अ प्रोबेबिलिटी सैम्पल, तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक मेथड है. सो वी विल गो विद ऑल ऑफ द अबव. सब बेनिफिट्स इसमें हैं. वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव वेल फॉर्मुलेटेड रिसर्च क्वेश्चन? जो आपका बेसिकली रिसर्च का क्वेश्चन है जिस पर आप फर्दर स्टडी करने वाले हो वो वेल फॉर्मुलेटेड क्यों होना चाहिए? फर्स्ट क्या है, जो ऑडियंस हैं जो उस फर्दर आगे उसको कंडक्ट करेंगी उनको क्लियर पता होगा कि देयर इज क्लैरिटी इन द रिसर्च प्रोसेस. इट विल लीड टू मोर फोकस्ड रिसर्च एंड इट विल प्रोवाइड मोर स्ट्रक्चर टू योर वर्क जो आप उसको कंडक्ट करोगे. सो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट. वी विल गो विद अगेन विद ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. सो विद दिस we conducted, we studied all these questions and I hope आप अपने साथ साथ UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो. With this, I end up this session. We'll meet you in next. Till then, have a nice day. Bye-bye. Thank you.